Hello students, hope you are absolutely fine and enjoying the sessions of work and energy. Well students, as you know that we finished the content part of this chapter and I'm sure that all of you must have gone through those sessions. First of all, note down the content given by me in all those sessions. तो पहले आप उसे नोट डाउन करें अपनी कॉपी पर. After that, start doing the question answers what we are going to start today. Okay, once again welcome back in the class of physics. Well students, today we will start in-text questions of chapter work and energy. So see this is the first question. A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter. See, this is the object. A force of 7 Newton acts on this object. And this object displaces 8 meter in the direction of force. Correct? Now he is asking what is the work done in this case. See, you know the formula of work done. W is equal to F into S. So here F is equal to 7 Newton and S is equal to 8 meter. So W is equal to 7 into 8, 56. और W वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल्स. तो या तो पूरा जूल्स लिख दे या कैपिटल J. ओके, तो वर्क डन तो क्या हुआ यहां पर? तो इफ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन विल बी 56 न्यूटन. ओके, और it will be better if you attempt examples also. See, example भी देखते हैं हम first. A force of 4 Newton is acting on an object. The object is displaced to 2 meter in the direction of force. If the force acts on the object all through the displacement, then work done is 5 into 2 यानी 10 मीटर न्यूटन मीटर या जूल. बिल्कुल एग्जाम जो क्वेश्चन हमने किया सेम ऐसा ही है. तो फोर्स 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो वर्क डन विल बी 10 जूल. करेक्ट. तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी पर कर लीजिएगा. एंड आफ्टर दैट सी एग्जांपल 11.2 इसी पेज पर देखते हैं. सी अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड. कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम द लगेज. सी पोर्टर इज लिफ्टिंग द लगेज अगेंस्ट द ग्रेविटी. And whenever work is done against the gravity, that work is stored in the form of potential energy. तो potential energy का फॉर्मूला आपको मालूम है mgh. तो आप यहां लगा सकते हैं सी m is equal to 15 kg, h is equal to 1.5 मीटर. g गिवन नहीं है तो आप 9.8 यूज कर लीजिएगा. हालांकि मुझे लगता है इस क्वेश्चन में उन्होंने g की वैल्यू 10 की हुई है, बट यूज 10 when it is given. Otherwise, if it is not given, then यूज g is equal to 9.8 मीटर स्क्वायर. करेक्ट. तो w is equal to mgh, ये फॉर्मूला लगाकर आप इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं. mgs इन्होंने s लिखा है, अप एंड डाउन मोशन में आप h लिख सकते हैं. m g एंड h तीनों को मल्टीप्लाई करा तो 225 जूल वर्क विल बी डन. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन. सी व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन. हम कब कहते हैं वर्क हुआ? जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो. तो व्हेन फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी डन. करेक्ट. नाउ सी द नेक्स्ट. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. ये रहा एक्सप्रेशन, W इज इक्वल टू F इंटू S. करेक्ट. तो आप पहले लिख लें चाहे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फिर W इज इक्वल टू F इंटू S. करेक्ट. Now see the third one. Define 1 joule of work. See, 1 joule of work I have discussed in the first session right in the beginning. So I'm not going to discuss it anymore. आप और देखिएगा उस सेशन को समझिए and write down by yourself the definition of 1 joule. Next, a pair of bullocks exerts a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? It's very simple. See, the force applied by bullocks, this is given, displacement
is also given. तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, the same way you can do this. W is equal to F into S, तो W is equal to 140 into 15 joules में आंसर आ जाएगा. Is that clear? चलिए अब आगे देखते हैं. इस पेज पे ऐसा कोई और क्वेश्चन नहीं है. Now move to the next page 150. तो 150 पर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का इस पेज पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है. नाउ 151. तो 151 पर देखते हैं. सी द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज दिस. E stands for energy and K for kinetic. तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ mv स्क्वायर. ये एग्जांपल देखते हैं. An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second square. What is the kinetic energy possessed by the object? See, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में दो ही चीजें चाहिए, मास एंड वेलोसिटी, एंड हियर बोथ मास एंड वेलोसिटी आर गिवन. तो पुट m is equal to 15 kg and v is equal to 4. You will get the answer. Okay, ये देख लीजिए आप. m की वैल्यू 15 और v स्क्वायर है तो 4 into 4. सॉल्व करने पर आ जाएगा 120 जूल. तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की हो गई 120 जूल. फाइन. नाउ what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of car is 1500 kg? देखिए कार है 1500 kg की. Earlier it was moving with the speed of 30 km per hour, correct? And we want to increase its speed from 30 to 60. So definitely some work is required to be done. तो वो यही पूछ रहा है, what is the work to be done? वैसे मैं आपसे बता दूं, इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए. Whenever work is done to change the velocity of an object, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम करने पे, then the work done will be equal to change in kinetic energy. इस लाइन को ध्यान रख लीजिए. तो whenever work is done to change the velocity of an object, तो work done will be equal to the change in kinetic energy. See, उस फॉर्मूले को लगाने से पहले फर्स्ट वी विल हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. तो मास ऑफ कार इज गिवन m, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज 30. आप इसे या तो इस तरीके से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर ले, वरना इसका सिंपल तरीका है 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. यू विल गेट दिस मच. और डेसिमल में भी आप रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, अदरवाइज फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं. सिमिलरली यू कैन कन्वर्ट फाइनल वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकेंड. And then initial kinetic energy हाफ mv स्क्वायर, हाफ m और इनिशियली आई थी. देखिए डेसिमल में सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है, तो इट विल बी बेटर इफ यू कंटिन्यू इन फ्रैक्शन एंड फाइनली यू कन्वर्ट इट टू डेसिमल. एंड नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आ जाएगा. और फिर वर्क डन बराबर हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द फॉर्मूला व्हाट आई डिस्कस विद यू इन द बिगिनिंग ऑफ द सम. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल माइनस कर दीजिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. एंड दिस विल बी इक्वल टू द वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड फ्रॉम 30 टू 60. फाइन. आप इसे शुरू में भी कर सकते थे. आप पहले यू और वी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए. देन राइट डाउन दिस फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. हाफ m कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सारी वैल्यूज आपके पास है, पुट कर लीजिए. यही आंसर आपका आएगा. ओके, आप इन्हें करिए जरूर. डू इट बाय योरसेल्फ, ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस सम्स इन पेपर. करेक्ट. आप सोचे से मेरे समझाने से और आप देखते जा रहे हैं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा. यू विल हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. फाइन. तो नेक्स्ट मूव करते हैं 152 पेज. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? डेफिनेशन, द एनर्जी possessed by an object by the virtue of its motion. सेशन में हमने किया हुआ है, ये सेकंड सेशन में लिखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू मास एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी. ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन का. The kinetic energy of an object m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be its देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास नहीं दिया हुआ है, m का है, उसे वेलोसिटी इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन. आप इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं. आप फॉर्मूला लगाइए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी की जगह रखिए 25 इज इक्वल टू हाफ
m को m रहने दीजिए और v स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 kg आ जाएगा, शायद एक बार देख लीजिएगा इसे। वो कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो वेलोसिटी पहले 5 थी, तो व्हेन वेलोसिटी विल बी डबल्ड तो वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास आपका कैलकुलेट हो चुका है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट मास and 10 meter per second velocity, you can calculate the new velocity, new kinetic energy. One more part he is asking कि what will be kinetic energy if velocity is increased 3 times? तो 3 times हो जाएगी तो velocity हो जाएगी 15 meter per second. तो with 15 meter per second velocity and mass same रहेगा तीनों केसेस में, जो हमने फर्स्ट केस में कैलकुलेट किया था, उस दोनों की हेल्प से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाएगी। आप इसे करिए, नहीं होता आप मुझे फोन करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, और अदरवाइज मैं आपको जो है स्लाइड्स भी भेज दूंगा जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो आप यहां तक इन्हें अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चंस करिए, पहले कंटेंट पार्ट लिखिए जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं सब सेशंस में, उसके बाद ये क्वेश्चंस करिए, एंड फर्दर वी विल मूव इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।